غالباً مطلب اولا ہونے کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رمشا کنول. شیخوپورہ میں ایک اور حادثہ پیش آیا ہے جہاں شالیمار ایکسپریس اور آئل ٹینکر میں تصادم ہو گیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں. معاملہ یہ نہیں ہے کہ آج یہ حادثہ پیش آیا ہے، اس سے پہلے بھی ہم کئی پروگرامز کر چکے ہیں اور گزشتہ سالوں پر اگر نظر دوڑائیں تو 4 سالوں میں جو ٹرینوں کے حادثات ہیں وہ 304 حادثات ہو چکے ہیں اور وزارت ریلوے کی جانب سے یہ خود رپورٹ شیئر کی گئی ہے. اگر بات کی جائے ان حادثات میں لوگوں کی کہ کتنا جانی نقصان ہوا تو 96 افراد اب تک ان حادثوں میں جاں بحق ہو چکے ہیں پچھلے سال میں، اور جو افراد زخمی ہیں وہ بھی کئی تعداد میں زخمی ہو چکے ہیں. یہ حادثہ کیسے پیش آیا، پہلے تو اس پر ایک رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ان کے حقائق تک پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ آخرکار کس کی غفلت تھی اور کیا ہوا، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. حالات اور تبدیل ہوتا سیاسی منظرنامہ، ریاست کی سیاست میں چھپے اہم حقائق، 2 ٹوک سوالوں کا 2 ٹوک جواب. ہم بتائیں گے خبر کے اندر کی خبر. موجودہ سیاسی صورتحال کا تجزیہ ماضی کے تجربات کی روشنی میں. تکرار نہیں، بحث بے لاگ دلائل کے ساتھ. دیکھیے خبروں اور انکشافات سے بھرپور پروگرام ڈی این اے پیر سے جمعرات رات 11:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے. تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا. آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں. ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا. کلبھوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا. کلبھوشن کا نام نہیں لیا. دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. کھوج رگوں میں زہر اتارنے والوں کی، بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی. اغوا کی ہو واردات یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش، اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہاتھ. پہنچیں گے حوالات اب سب دھوکے باز. کیونکہ ہم کریں گے انکشاف. دیکھیے پروگرام انکشاف ہفتے اور اتوار کی رات 10:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. خبر وہی جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کے لیے اہم ہے، تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں بہتر. دیکھیں گے خبر کے اثرات اور وجوہات پروگرام خبر کے ساتھ میں. دیکھیے پروگرام خبر کے ساتھ پیر تا جمعہ شام 5:03 پر صرف 24 نیوز HD پر.
पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना उच्चा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खून चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत और ये रिकॉर्ड पे है, ये मेरे पास है। 2014 में मैंने इस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया और इन 3 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक ऐसा सिस्टम का इजरा किया है कि मैं ये वसूख से कह सकता हूं कि इस किस्म की गलतकारियों का अगर मुकम्मल तौर पे नहीं तो करीब करीब मुकम्मल तौर पे रास्ता बंद कर दिया। मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं कि जैसे पहले होता था कि लोग गैर मुमालिक से बगैर वीज़ा के बगैर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से आते थे, यहाँ मिली भगत से या वीज़ा एयरपोर्ट में मिल जाता था या जाली कागजात से पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाते थे। अब ऐसा नहीं है। अब कोई एयरलाइन बगैर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के या गलत डॉक्यूमेंटेशन से भी अगर वो आएँ तो उसी फ्लाइट से हम वापस भेजते हैं और तकरीबन 9 करोड़ की हम जुर्माने इन एयरलाइंस को हमारी दौरे हुकूमत में कर चुके हैं। सो ये मादर पितर आज़ादी अब नहीं है एयरलाइंस को, और सब बड़ी एयरलाइंस को हमने जुर्माने किए हैं। मगर किसी की भी गलत डॉक्यूमेंटेशन हो और ये 2 साल से राइज है अब तरीकाकार, उसको अगली फ्लाइट से ही हम वापस भेज देते हैं। वीज़ास के अजरा में मैंने कहा कि 2014 में मुझे मेरे नोटिस में आया तो ये नोटिफिकेशन मैंने फौरी तौर पे कैंसिल कर दिया और वीज़ास के इजरा को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और शफाफ बनाने के लिए हमने बहुत से इक़दाम किए। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, मगर अब जो 2 स्टेप्स और आज ही मैंने प्राइम मिनिस्टर की उस पर मंजूरी ली है, हम एक सिस्टम ला रहे हैं जिसमें तमाम वीज़ास के जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन दिए जाएं, जिस तरह बहुत सारे डेवलप्ड ममालिक में होते हैं। उसका एक सेंट्रल डेटा बैंक हो, जो मैंने नादरा को कल ही हदायत दी हैं कि वो डेवलप करें इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, और जिस तरह साबका सालों साल में होता है कि द राइट हैंड डज नॉट नो व्हाट द लेफ्ट इज डूइंग, ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इस पे खात्मा होगा। कोई शख्स पाकिस्तान के वीज़ा के लिए अप्लाई भी करे तो उसका नाम, उसकी डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड पे होगी और वो अवेलेबल होगी हमारी तमाम सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज और हुकूमती इदारों को। इसके साथ साथ
ایک اور بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ امیگریشن سروس ڈپارٹمنٹ کو FIA سے علیحدہ کیا جائے. یہ عجیب ایک سسٹم ہے. فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا کوئی تعلق امیگریشن سے نہیں ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی اے سیپریٹ سروس, اور وہ ایک بالکل ماڈرن, ڈیولپڈ اور فوکس سروس ہو. تو اس کا بھی ہم فریم ورک, ظاہر ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس سے اپروول کے بعد اس کا اجرا ہوگا, مگر ان پرنسپل وہ اپروول وزیر اعظم صاحب سے دونوں چیزوں کی میں لے چکا ہوں. میں صرف یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں جو بھی ان خبروں سے کسی قسم کی تشویش میں مبتلا ہے کہ اب ایک ایک ویزا کی اپلیکیشن کو سفٹ کیا جاتا ہے, سیکیورٹی کلیئر کیا جاتا ہے. ڈپلومیٹس کی بھی, ڈپلومیٹس جو آفیشیل ڈپلومیٹس ہیں ان کو بھی انیشل 1 سال کا ویزا تو مل جاتا ہے, اس کے بعد ان کی باقاعدہ سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے. اور مجھ پہ دائیں بائیں سے بہت پریشر رہا کہ اس میں چینج آنا چاہیے, میں نے چینج نہیں کیا. اور ان کی جو ویزا ایکسٹینشن ہے وہ سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد ہوتی ہے, کیونکہ کوئی ایجنٹ, کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کا اہلکار ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے فساڈ میں پاکستان میں داخل نہ ہو سکے. اس ملک میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اچھے کام کی تو کوئی نوٹس نہیں ہوتا, مگر یہ بہت سارا کام پچھلے 2-2.5 سالوں میں منسٹری آف انٹیریئر نے کیا ہے. آج سے ایک 1.5 سال پہلے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ان 400 گھروں, تقریباً 400 گھر تھے جن کے تمام تر پریشرز کے باوجود وہ اپنی انفارمیشن دینے کے لیے تیار نہیں تھے. تو میں نے ایک دن یہ فیصلہ کیا کہ آج شام 6 بجے تک جو نہیں دے گا ان کی انٹری اور ایگزٹ بلاک کیے جائیں. تو جیسے 6 بجے قریب آئی اور ہم نے ایک گھر کو انٹری بلاک کرنی شروع کی, ایوری تھنگ began to unravel. اور آج میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر ان میں سے 40 سے زیادہ ڈپلومیٹس کے تھے اور وہ گھر چھوڑ کے پہلے ہی جا چکے ہیں. اب کوئی مجھے کہے کہ یہ تحقیق مزید کیوں نہیں ہوئی, ہمیں پتہ ہے کہ کس ایمبیسی سے یہاں لوگ تھے, یا جو پچھلے 10 سالوں میں ہوتا رہا ہے اس کی تحقیق کیوں نہیں ہوئی. تو اس کا بنیادی وجہ پچھلے 10 سالوں کی کہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے. جو بغیر ریکارڈ کے آئے ان کو تو ریکارڈ ہے ہی نہیں, اور جن کا اجرا ہمارے سفارت خانوں نے کیا ان کا بھی ریکارڈ ہمیں بھیجا ہی نہیں گیا. یہ آگاہی دائیں بائیں سے مجھے, سیکیورٹی ایجنسی سے, انٹیلیجنس ایجنسی سے, جو اس وقت لوگ بہت سارے ان سروس تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ کیا ایک بھیڑ چال مچی ہوئی تھی. کسی کو پاکستان کی سیکیورٹی کا احساس نہیں تھا, کسی کو پاکستان کے جو اس وقت کی صورتحال ہے, بلکہ کسی وقت کی بھی صورتحال, اس کی جو حساسیت تھی اس کا احساس نہیں تھا. ایک ذاتی طور پہ یہ ایک سوداگری ہو رہی تھی. مگر میں ان 3.5 سالوں کا ذمہ دار ہوں, مجھے کوئی تھوڑا سا وقت لگا, مگر اب میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ملک خدا نہ خواستہ اب بنانا ریپبلک کے طور پر ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے. میں نے ویزا فیس بھی بڑھا دی ہیں. پہلے یہ تھا کہ پاکستانیوں سے ایک ملک تو بہت زیادہ فیس لاکھوں کے حساب سے لے رہا تھا, ان کا کوئی فرد پاکستان آئے تو ہم نے اس کا 10واں حصہ لیتے تھے. تو میں نے کہا یہ بائی لیٹرل ہونا چاہیے. جس ملک کی فیس جتنے ہزاروں یا لاکھوں میں ہے, ان کے شہری پاکستان میں آئیں گے تو اتنی فیس ہوگی. تو میں نے کوشش کی ہے کہ ہر چیز میں پاکستان کی ڈگنیٹی اور سیلف ریسپیکٹ کو مد نظر رکھا جائے. اب یہ نہیں ہے کہ کسی ملک ہمارے فیس ہمیں ہزاروں لاکھوں میں لیتا ہے تو ہم ان سے ہزاروں میں یا سینکڑوں میں لیتے ہیں. اب یہ سب بائی لیٹرل ہے. ویزاز کی جہاں رکاوٹ ہوتی ہے وہاں ان کو بھی رکاوٹ ہوتی ہے, اور جو بھی لوگ پاکستان میں آتے ہیں وہ سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد آتے ہیں. اور یہ آن لائن انشاءاللہ آپریشنل ہو گیا تو سب کچھ مزید ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا, اور آن دا پش آف اے بٹن everybody will be able to find out کہ who's coming to Pakistan and as what.
اس میں بھی بڑا گڈ موڈ ایک مسئلہ رہا کہ کوئی ٹورسٹ ویزا پہ آیا یہاں ورک ویزا لے گیا, کوئی بزنس ویزا پہ آیا تو یہاں ورک ویزا لے گیا, ورک ویزا آیا تو بزنس ویزا لے گیا. اب میں ہر ایک ایسے ویزا کے میں خود دیکھتا ہوں, جو بورڈ آف انویسٹمنٹ سے بھی آتا ہے, جو اور بہت سارے مختلف اداروں سے آتا ہے, میں خود دیکھتا ہوں, ایک ایک کو دیکھتا ہوں, اس کی نیشنلٹی دیکھتا ہوں. ایک ہمارا منسٹری میں بھی سسٹم ہے, مگر میں اوور اینڈ ابو دیٹ دیکھتا ہوں, کیونکہ یہ انتہائی حساس مسئلہ ہے. اور جس طرح ہم نے راستہ روکا پلین لوڈز آف نان پاکستانیز بینگ ڈپورٹڈ ٹو پاکستان, میں اس پہ بھی پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ اب کسی کو جرت بھی نہیں ہے اور توفیق بھی نہیں ہے کہ غیر ملکی ایلینز کو ایز انڈاکیومنٹڈ ایلینز وہ جہاز بھر کے پاکستان بھیجیں. میں نے ہر ایک کو اس پہ بڑی, آپ کو یاد ہے 1.5 سال پہلے بہت زیادہ اعتراض ہوا, بڑی اندر سے بھی بہت سی پریشرز آئے, مگر ہم نے صحیح لائن طے کر دی ہے اور ہر ملک کے ساتھ اب یہی پالیسی متعین ہے. ہاں, جو پاکستانی ہیں جن کا ایک ڈاکومنٹیشن ہے یا جن کے بارے میں شواہد ہیں کہ یہ پاکستانی ہے, ان کو واپس لینا ہماری ذمہ داری ہے, تو وہ میں ذمہ داری پوری کرتا ہوں. ان 3.5 سالوں میں میں نے ایک کمپرومائز کیا, صرف ایک اپنا اتھارٹی استعمال کی ہے, ورنہ کبھی نہیں کی. جب میرے علم میں میڈیا کے ذریعے آیا کہ ایک بے بس خاتون جس کے پاس چھوٹا سا شیرخوار بچہ آزاد کشمیر سے تھی, اس کا ایک ہندوستانی مسلمان خاوند یہاں سے ہندوستان لے کے گیا اور وہاں پہ چھوڑ دیا, اور اس بیچاری کے پاس کوئی پاسپورٹ کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا, اس کو پھر جیل میں رکھا. تو جب میڈیا میں یہ بات آئی تو میں نے پاکستان ہائی کمیشن نیو دہلی کو کہا کہ جا کے ہمارا ایک افسر ملے. تو ہماری ایک افسر وہاں ملنے گئی تو اس بیچاری عورت خاتون کی حالت بہت ابتر تھی. آپ دیکھیں 6 سال سے وہ جیل میں ہے, کسی کو علم نہیں تھا, اور اس کا شیرخوار بچہ بھی تھا. تو وہ واحد خاتون ہے جس کو ڈاکومنٹیشن کے بغیر صرف اسے انٹرویو لے کے میں نے واپس پاکستان آنے کی اجازت دی, اور ایز منسٹر میں نے, ورنہ کسی کو کسی سفارش پہ کسی بغیر ڈاکومنٹیشن کو, آپ کو یاد ہے کہ میں خود کرکٹ کھیلتا رہتا ہوں, ڈین جونز ایک بہت مشہور کرکٹر ہیں, کمزور ڈاکومنٹیشن سے آئے تو دوسری فلائٹ سے واپس چلے گئے. شرمیلا ٹیگور صاحبہ ایک ایئرپورٹ سے نہیں دوسری ایئرپورٹ سے جاؤں سے اجازت نہیں تھی, ان کو واپس کر دیا گیا, ان کا یہاں سے نہیں جا سکتی. اس طرح بہت سارے کیسز ہیں, آفیشلز کے کیسز ہیں, سو کالڈ ڈپلومیٹس کے کیسز ہیں, سینکڑوں کے حساب سے کیسز ہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ اس میں ہم بہت بہتری اور سٹیبلٹی لائے ہیں, اور انشاءاللہ یہ جو علیحدہ امیگریشن سروس اور آن لائن سب کچھ ہونے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اور بہتری آئے گی. دوسرا ایشو جس میں میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا, دوسرا اور آخری ایشو, وہ انتہائی اہم ایشو ہے, اور وہ ہے جو بلاسفیمس مٹیریل سوشل میڈیا کے ذریعے جس کی تشہیر کی جا رہی ہے اور جس میں مذاق نہیں بنایا جا رہا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ مٹیریل آپ دیکھیں تو یو ول ریئیکٹ وائلنٹلی. میں پہلے چند وہ جو سینٹنسز ان سے آگے نہیں پڑھ سکا, تو یہ مجھے علم ہے کہ یہ کافی عرصے سے چل رہا تھا, مگر جب سے یہ ذمہ داری, یہ ویسے میری ذمہ داری نہیں ہے, بنیادی طور پہ آئی ٹی اور پی ٹی اے کی ہے, مگر جب سے یہ ذمہ داری مجھے تجویز پرائم منسٹر نے کی ہے اور ہائی کورٹ نے بھی اس سلسلے میں ڈائریکشنز دیے ہیں, تو میں نے اس کو ایک مذہبی فریضہ بھی اور ایک قومی فریضہ بھی, مگر سب سے بڑھ کر مذہبی فریضے کے طور پر, کیونکہ کسی مسلمان کی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب اسے احساس نہ ہو ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو الحمدللہ اس پہ بہت پیش رفت ہوئی ہے. ایک طرف میں نے
ہمارے جو سفیر ہیں واشنگٹن میں ان سے علیحدہ بات کی. ہماری جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں نیو یارک میں ڈاکٹر ملیہ لودھی ان سے علیحدہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ آپ فیس بک سے ان کی انتظامیہ سے بھی اور امریکی انتظامیہ سے بھی بات کریں اور انہیں کہیں کہ یہ ہمارے لیے انٹالریبل ہے, یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. ادھر جو کچھ میں نے اقدامات کیے پی ٹی اے کے ذریعے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, مگر میں نے سوچا کہ اس پہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے. تو میں نے تمام مسلم ممالک کے سفیروں کو یہاں ہی بلایا اور ایک بہت اچھی میٹنگ ہوئی. اس کی جو سب سے خوشگوار بات ہے وہ یہ ہے کہ مکمل کنسنسس تھا تمام سفیروں میں. مکمل کنسنسس اس بات پہ بھی تھا کہ ہم اس پہ ایک ہو کے اپنی آواز بلند کریں, اور دوسرا انہوں نے پاکستان کی اس انیشیٹو کو بہت اپریشیٹ کیا. حالات اور تبدیل ہوتا سیاسی منظرنامہ, ریاست کی سیاست میں چھپے اہم حقائق, دو ٹوک سوالوں کا دو ٹوک جواب. ہم بتائیں گے خبر کے اندر کی خبر. موجودہ سیاسی صورتحال کا تجزیہ, ماضی کے تجربات کی روشنی میں. تکرار نہیں, بحث بے لاگ دلائل کے ساتھ. دیکھیے خبروں اور انکشافات سے بھرپور پروگرام ڈی این اے پیر سے جمعرات رات 11:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے, انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے, امپلائمنٹ لے کر آئیں گے, انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے. تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہیں, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں, دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا. آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں. ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور, ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا. کلبھوشن یادیو, آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ شور مچایا. کلبھوشن کا نام نہیں لیا. دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. کھوج رگوں میں زہر اتارنے والوں کی, بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی. اغوا کی ہو واردات یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش, اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہاتھ. پہنچیں گے حوالات اب سب دھوکے باز. کیونکہ ہم کریں گے انکشاف. دیکھیے پروگرام انکشاف ہفتے اور اتوار کی رات 10:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. خبر وہی جو آپ چاہتے ہیں, جو آپ کے لیے اہم ہے, تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں بہتر. دیکھیں گے خبر کے اثرات اور وجوہات پروگرام خبر کے ساتھ میں. دیکھیے پروگرام خبر کے ساتھ پیر تا جمعہ شام 5:03 پر صرف 24 نیوز HD پر.
पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। प्रोग्राम खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बीजेपी ने मुंबई में कायदे आजम का घर गिराने का मुतालबा कर दिया है और भारतीय रियासत महाराष्ट्र में इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी के रुकन असम्बली प्रसाद लोधा ने यह मुतालबा किया कि मुंबई में जो कायदे आजम की रिहाइशगाह है आबाई रिहाइशगाह जिसे जिना हाउस कहा जाता है उसे मस्मार कर दिया जाए। और ये वजह है मुतालबा करने की कि वो ये कहते हैं कि ये इमारत तकसीम हिंद की अलामत है जिसे मिस्मार करना अशद ज़रूरी है, तो इसे फौरी तौर पर मिस्मार कर दिया जाए और अब इसी देखभाल के लिए कोई यहाँ पर मौजूद भी नहीं है। तो इसी पर बात करते हैं और साथ साथ एक और केस जो कि बाबरी मस्जिद शहादत केस है, मुकदमे की समाअत में ताखीर की जा रही थी। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इजहार तशवीश भी किया है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जनरल साहब आपका कॉमेंट लेना चाहूंगी इस बात पर कि बी ने ये जो मुतालबा किया है कायदे आजम के घर गिराने का और अब उसकी देखभाल के लिए कोई वहां पर मौजूद नहीं है, वो कहते हैं इसे मिस्मार कर दिया जाए। दूसरी जानिब ये भी कहते हैं कि ये तकसीम हिंद की अलामत है इसलिए इसे गिरा दिया जाए, जबकि कायदे आजम की वसीयत के मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि इसे सिफारत खाना बना दिया जाए, यूरोपीय ममालिक को दे दिया जाए और इसे सिफारत खाना बना देना चाहिए। तो फिर उस पर तो मुतालबा पर अमल दरामद नहीं हुआ, अब ये कह रहे हैं मिस्मार कर दे। तो आपके नजदीक आप इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा कहा कि हम इसकी कीमत देने के लिए तैयार हैं, हम ख़रीदना चाहते हैं या अगर लीज़ पे देना चाहे गवर्नमेंट तो लीज़ पे दे ताकि वहाँ पे सफारत खाना बना दिया जाए। लेकिन हिंदुस्तान ने आज दिन तक इस पे कान नहीं धरा और इस असना में ये बिल्डिंग जो पहले किराए पे थी अब खाली पड़ी है, तो इसकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि ये यूँ लगता है कि शायद ये खुद ब खुद मिस्मार हो जाए। और अगर ये बिल्डिंग मेंटेनेंस न होने की वजह से अगर इसकी छतें कहीं गिर जाती हैं तो मेरा ख्याल है कि बीजेपी को एक मुकम्मल बहाना मिल जाएगा इसको ख़त्म करने का और गालिबन इसी चीज़ के इंतज़ार में वो है। अब चीज़ ये है कि वक्त के साथ साथ हिंदुस्तान जो अपने आप को सेकुलर कहता था, सेकुलरिज्म तो ख़त्म हो गया, अब वो एक हिंदू इंतहा पसंद रियासत बनता जा रहा है। आपने देखा कि जो यूपी में इलेक्शन हुए हैं वो टोटली उन्होंने हिंदुत्व के नारे पे और सिर्फ हिंदू लोगों को इन्होंने टिकट दिए वहाँ पे और मुसलमान की रसाई दी। और इसी वजह से आप देखिए कि वहाँ पे वो योगी आदित्यनाथ जो है वो अब जो इतना इंतहा पसंद आदमी है वो वहाँ पे आ गया। तो असल चीज़ ये है कि 1947 से ही भारत का ये मकरू चेहरा हमें पता था, किसी न किसी शक्ल में नज़र आता था, लेकिन हमारे मुल्क के अपने लोग धोखा खाते थे और वो इसको सेकुलर मुल्क समझते थे।
मैं समझता हूँ आज यहाँ बैठ के सबके लिए कायद आज़म के लिए दुआ गो होने की ज़रूरत है, जिसकी विजन इतने साल पहले काम कर गई और उनको ये अंदाज़ा था कि मुसलमानों का यहाँ पे रहना दुबारा होगा, वो नहीं रह सकेंगे यहाँ पे। आज वहाँ मुसलमानों के हालात आप देख लीजिए, और ये वो मुल्क है जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी अब तो सिचुएशन जो है वो खुलकर सामने आ गई है। भारत का जो रवैया है, ये जो पाकिस्तानियों के साथ, जो कायद आज़म की प्रॉपर्टी के साथ जिस तरह से वो खिलवाड़ करना चाह रहे हैं, ये तो दुनिया भर में सामने आ गया। अब पाकिस्तान हुकूमत को क्या करना चाहिए, तारिक मीरज़ादा साहब, क्योंकि कायद आज़म ने, मैंने जैसे अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि वसीयत की थी या तो यूरोपीय मुल्क के सफारत खाने में तब्दील कर दिया जाए, और इसके बाद पाकिस्तान ने भी मुतालबा किया था कि मुंबई में जो पाकिस्तानी सफारत खाना है उसे मुंतकिल करके यहाँ सफारत खाना बना दिया जाए। तो क्या इस पर अमल दरामद हो सकता है और पाकिस्तान हुकूमत करवा सकती है अमल दरामद आपके नजदीक? पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूं कि जिस पार्टी का नाम लेकर पाकिस्तान का वजीर आज़म नवाज शरीफ इस वक्त तीसरी बार पाकिस्तान का वजीर आज़म बना है और मज़े उड़ा रहे हैं, इन लोगों को अगर ज़रा सी भी हमीयत, कौमी हमीयत मौजूद है, तो आज की तारीख में शाम ख़त्म होने से पहले मियाँ नवाज शरीफ का बयान इस मौजू पर आना चाहिए कि हम हिंदुस्तान को खबरदार करते हैं कि इस इमारत को गिराने की कोशिश ना की जाए और फौरी तौर पर इसको पाकिस्तान के हवाले किया जाए और जो मुआवजा आपने लेना है वो ले लिया जाए। अगर मियाँ नवाज शरीफ ये हरकत नहीं करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि भारत के साथ दोस्ती को कायद आज़म की ज़ात पर तरजीह है, कायद आज़म के असासों पर नरेंद्र मोदी के नाम को तरजीह है, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान से मुतालिक, तहरीक पाकिस्तान से मुतालिक, नज़रिया पाकिस्तान से मुतालिक कोई भी चीज़ वो मियाँ नवाज शरीफ की ज़िंदगी में अहमियत नहीं रखती। ये लोग दिवाली के त्यौहार में खड़े होकर ये तो कहने के लिए तैयार हैं कि मैं चाहता हूँ कि हिंदू मुझ पर रंग फेंकें। अरे भाई फेंकें, आप खेलें ज़रूर, लेकिन जब मुसलमानों की यादगारों के तहफ़्फ़ुज़ का जिक्र आता है तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ऐवान से कोई आवाज़ नहीं आती। अगर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इस मसले पर कोई बात नहीं करता तो मैं समझता हूँ बदतरीन बेहमीयती का मुजाहरा होगा और पाकिस्तान के लोगों पर भी मुझे अफसोस होगा कि अपने वज़ीर आज़म की गर्दन नहीं पकड़ सकते। ठीक, जनरल साहब, आपके नजदीक क्या लगता है आपको कि हुकूमत को क्या स्टेप्स इस वक्त लेने की जरूरत है कि जो जिन्ना हाउसों को मिसमार करने की बात की जा रही है कि भारत के ऊपर पाकिस्तान किस तरह से प्रेशर बिल्ड कर सकता है और वो जो जायदाद है कायदे आज़म की उसको कैसे हम सेव कर सकते हैं और या सिफारत खाने में तब्दील करवा सकते हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हुकूमत इस मामले को उठाए तो सही। अगर आप ये किस्सा नहीं उठाएंगे तो भारत को कैसे ख्याल आएगा कि ये पाकिस्तान क्या चाहता है। तो पहली बात तो ये है कि इस पर एक रिएक्शन आना चाहिए था, हम इन रिएक्शन दें। फॉरेन ऑफिस जो है वो भारत का जो यहाँ पे सफ़ीर है उसको बुलाए, कन्वे करे कि जी हम इस चीज़ के मामले में बड़े सीरियस हैं, ये नहीं होना चाहिए। और आप हम खरीदना चाहते हैं, हम खरीद लें, हमें खरीदने दें, आप पैसे ले लें या इसको लीज में दे दें, आपको हम सालाना पैसे देते रहेंगे। मतलब यहाँ पे उनका एम्बेसडर मौजूद है, उसके साथ ये किस्सा तो उठाया जाए, लेकिन जब आप नहीं करेंगे तो आपका रिएक्शन नहीं आएगा, दूसरी तरफ से हक बजानब होंगे, वो जो जी चाहे करें। अब हमें उनको सैकड़ों एग्जाम्पल्स देनी होंगी। जो हमारे यहाँ इवैक्यू ट्रस्ट है, इवैक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट है, जो कि दुश्मन की प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे उनको बराबर मेंटेन किया जा रहा है, उनकी रखवाली है, वो विजिट भी किए जाते हैं, लोग आते हैं। वो चीज़ें उनको दिखानी होंगी कि देखें कौमें इस तरह करती हैं। और अगर आप ये उसके मुज़मरात में ही उस एम्बेसडर को बताएंगे कि हम इस पे रिएक्ट करेंगे, हम इन चीज़ों के ऊपर आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा होगा, हम एहतजाज करेंगे, तो उनको इसकी हसासियत का कोई अंदाज़ा नहीं होगा। यहाँ जमूद है, जैसे तारिक पीरज़ादा कह रहे हैं, हुकूमत को इस चीज़ की, इन चीज़ों की फिक्र नहीं है, ये बड़ी बदकिस्मती है। आप भारत के साथ दोस्ती बिल्कुल करें, ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन आप अगर दोस्ती करने से पहले अगर अपने कौमी मफादात को कुर्बान कर दें तो फिर वो दोस्ती तो कोई भी आपसे कर सकता है। बिल्कुल, बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपके साथ आ जाएगा। जब अपने सिफारती सतह पर हम बहुत नुकसान पहले ही उठा चुके हैं ना, हमने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के बहुत सारी चीजें हमारे सामने मौजूद है। बहरहाल यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बाबरी मस्जिद शहादत केस की भी बात करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि उस जगह पर, उस जमीन पर, उस इराजी पर अब मंदिर कायम कर दिया जाए। भारत में इस बारे में आवाज बुलंद की जा रही है, इस पर बहस होगी राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए।
world first time. हालात और तब्दील होता सियासी मंजरनामा, रियासत की सियासत में छुपे अहम हकायक, दो टोक सवालों का दो टोक जवाब। हम बताएंगे खबर के अंदर की खबर। मौजूदा सियासी सूरत हाल का तज्जिया, माजी के तजुर्बात की रोशनी में, तकरार नहीं बहस, बेलाग दलाइल के साथ। देखिए खबरों और इंकशाफात से भरपूर प्रोग्राम डीएनए पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ हफ्ते और इतवार की रात 10:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खबर वही जो आप चाहते हैं, जो आपके लिए अहम है, ताकि आप फैसला कर सकें बेहतर। देखेंगे खबर के असरात और वजूहात प्रोग्राम खबर के साथ में। देखिए प्रोग्राम खबर के साथ पीर ता जुमा शाम 5:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात पे दुआ नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दमाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम
मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैसा कहाँ से आया जहाँ से फ्लैट्स खरीदे गए? नवाज शरीफ साहब ने कहा जो ऐसा पैसा होता है अपने नाम पर कोई भी नहीं रखता। बंदा कहे कि मैंने पैसे दिए हैं और दूसरा बंदा कहे कि मैंने लिए हैं, तो तीसरा बंदा ऑब्जेक्शन कैसे कर सकता है? दलदल है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली जितना उससे निकलना चाह रही है उतना ही उसमें धंसते जा रहे हैं। PMLN की तरफ से कि हम इतने सबूत दे चुके हैं, इसके 3 नस्लों का हिसाब दे दिया है। 3 नस्लों के सबूत इन्होंने ये दिए हैं कि तीनों ने माल बनाया। मुसलमान ममालिक के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बातें की, वो भी बहुत खतरनाक लगती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ना कोई कानूनदान है, ना वो पेशेवर सियासतदान है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि खेल का खिलाड़ी। खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बाबरी मस्जिद शहादत केस की बात करते हैं और मुकदमे की समाअत में मुसलसल ताखीर की जा रही थी। इस वक्त भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इसकी समाअत की है और वो ये कहती है कि बाबरी मस्जिद की जगह जो राम मंदिर की तामीर का फैसला है उसे अदालत के बाहर हल किया जाए, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। आपको भी बताते चलें कि बाबरी मस्जिद जिसे जुनूनी इंतहा पसंदों और मुसलमानों के दरमियान जो तसादुम हुआ था, तो 1992 में दुश्मन हिंदुओं ने इस मस्जिद को शहीद कर दिया था और ये दावा किया जाता है हिंदुओं की जानिब से कि वो जगह भगवान राम की जाए पैदाइश है, इसीलिए उस जगह को वहां पर मंदिर में तब्दील कर देना चाहिए जिस जगह पर मस्जिद तामीर कर दी गई है। तो ये मामला आपको क्या लगता है तारिक पीरजादा साहब के, क्या जैसे अदालत कह रही है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इस मसले को अदालत के बाहर हल कर लिया जाए और यहाँ मंदिर और मस्जिद की तामीर का फैसला अदालत के बाहर कर लिया जाए, तो क्या आपको इसमें पॉसिबिलिटी दिखाई देती है कि मामला इतना सिंपल है कि अदालत के बाहर हल कर लिया जा सकता है और जो मुसलमानों के जो जज्बात हैं क्या वो मजरू नहीं होंगे जब ये मंदिर तामीर कर दिया जाएगा वहां पर, अगर ये फैसला आ जाता है तो? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। बात ये मैंने एक प्रोग्राम में अभी पिछले दिनों कहा था जरा खुलकर, और वो ये था, यहाँ इस मुल्क के दानिश्वर हर वक्त बैठे हुए एक बात करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त आईनी निज़ाम है, बड़ा ज़बरदस्त जमहूरी निज़ाम है भारत में, और उनका अदालती निज़ाम तो दुनिया के अंदर बेनज़ीर है। 25 साल रमशा हो चुके हैं बाबरी मस्जिद की शहादत को, और ये बेशरम अदालत जिसने मुसलमानों के खून को देखते हुए, मुसलमानों की तारीख को देखते हुए, इस अदालत इस मस्जिद की तबाही को देखने के बावजूद अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। कस्साब को फांसी देते हुए इस अदालत को 6 से 8 महीने लगे थे, लेकिन बाबरी मस्जिद के वाकई में जो जिम्मेदार हैं ये अदवानी और दूसरे हिंदू इंतहा पसंद डाकू, वो आजाद फिर रहे हैं अभी भी। और अब ये मशवरा दे रही है अदालत, यही सुप्रीम कोर्ट जो इंसाफ के नाम पर धब्बा है भारत की सुप्रीम कोर्ट, वो ये मशवरा दे रही है कि बाहर बैठकर आप हल कर लें। अरे बाहर बैठकर अगर हल होने का मसला होता तो 25 साल आपने जाया क्यों किए थे? ये तो पहले दिन कहने की बात थी। और बाहर कौन बैठा हुआ है? बाहर नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है, उससे बड़ा डाकू और खून आशाम दरिंदा कौन हो सकता है? इसी तरह कौन बाहर बैठा हुआ है? जो उत्तर प्रदेश का नया इंतहा पसंद वजीर आला है वो बैठा हुआ है। बाहर कौन बैठे हुए हैं? अडवाणी बैठा हुआ है। इन लोगों के साथ बैठ के मुज़ाकरात होने हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि मेरा जो पुराना मौक़िफ़ है कि भारत एक बदतरीन, पाकिस्तान की बदतरीन दुश्मन रियासत थी, है और रहेगी, ये बात मियां नवाज शरीफ को समझने की जरूरत है। सबके सामने आया है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि जनरल साहब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि हमने ये देखा
हमने ये देखा कि 25 साल से जो एक मामला पेंडिंग था जिसे भारतीय सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रही थी, आज वो ये स्टेटमेंट देती है कि इसे बाहर हल कर लिया जाए। जैसे कि तारिक साहब ने भी कहा कि ये मामला तो पहले भी फिर अगर बाहर हल करना था तो हो सकता था। आज नरेंद्र मोदी की हुकूमत है जिसे इंतहा पसंद दुनिया भर में कहा जाता है, और दूसरी जानिब हमने कायदे आजम का घर गिराने की जो बात है उसे भी डिस्कस किया। तो क्या ऐसे एक्शंस लेके भारत क्या साबित करना चाहता है कि जो हिंदुओं के सेंटिमेंट्स हैं उसे इकट्ठा करना चाहते हैं कि आइंदा इंतखाबात में जैसे वो अभी नामजद होकर आए हैं मुसलमानों को बुरा भला कहकर, वो आइंदा भी इसी तरह हुकूमत कर सकें भारत पर? क्योंकि 25 साल बाद ये मामला आना, और एक अगर मस्जिद पहले से मौजूद है तो वहां पर दोबारा मस्जिद तामीर कर दी जाए, इसमें क्या मजे का खेज बात है? देखिए, मजे का खेज बात नहीं। जो उस वक्त इनके हाई कोर्ट ने फैसला दिया था उसमें भी ये अपने तौर पे हिंदुओं को ये फेवर कर गए थे, और उन्होंने कहा था कि जी मंदिर भी वहीं रहे, साथ मस्जिद बना दें। यानी मस्जिद की जो ज़मीन है उसका बंटवारा कर दिया, और उसमें से हिंदुओं को ज़मीन ज़्यादा दे दी, थोड़ी ज़मीन मुसलमानों को, और कहा कि जी इस पर बना लें। चुनाचे मुसलमानों ने अपील की कोर्ट में, वो अपील में चले गए। अब ये पिछले 8-9 साल से अपील का किस्सा इसी तरह पड़ा हुआ है, और वो प्रेशराइज कर रहे हैं। कोर्ट बार बार ये कहते हैं कि इसको मुसलमान और हिंदू बैठ के खुद फैसला कर लें, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट इसकी कर लें। अब आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट अगर हो रही होती तो फिर अदालत में जाने का तो कोई तुक ही नहीं बनता था। सो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट यही है कि हिंदू की बात मान ली जाए, और जो ये इंतहापसंद कहते हैं कि यहाँ मंदिर ही बनेगा और वो मस्जिद नहीं बनेगी, बस वो तस्लीम कर ली जाए तो फैसला हो गया। बिल्कुल अदालतों का ये काम नहीं। बिल्कुल, कोर्ट के बाहर अगर फैसला होता है तो फिर मस्जिद तो नहीं बनती दिखाई देगी, मंदिर ही बनेगा। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड अमजद शेर साहब मेरे साथ मौजूद थे, तारिक मिर्जा साहब मेरे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। आपसे दोबारा कल मुलाकात होगी नई खबरों, नए मौज़ूआत के साथ। मुझे दीजिए